करती हूँ बनाने वाले के पाक और बाबरकत नाम से। तमाम सुनते कानों और देखती आंखों को लुमना खान का प्यार भरा और खलूस भरा सलाम पहुँचे। Dear students, welcome to this special session of class 11th zoology. Last time we were discussing a very important subtopic in my earlier lecture, that was about blood groups, and in that we had already discussed what blood groups are, what is the proper definition of blood groups. Then I have tried to show you how genetically these blood groups are determined, what are the different types of alleles that determine these blood groups, and from there we could not resume the lecture due to the paucity of the time. Now today we will try to resume from there. Now dear students, I already told you in my previous lecture that these blood groups, the ABO blood group, that is determined by three alleles. We were discussing about these three alleles, IA, IB and IO, and I had told you that the ABO blood group in human beings is determined by these three alleles, and in this I had already told you that this IA and IB is dominant over the allele O, यानी allele A or allele B जो है that is dominant over the allele O, and as far as A and B are concerned, A and B are codominant. Now let us try to resume our lecture from here. I had already also told you a very important thing, that blood groups give present before you example of multiple allelism because of the presence of these three alleles. A gene is having three alleles, so it is an example of multiple allelism, and at the same time because of the ABO blood group we understand that these two alleles are codominant. So blood groups present to you example of codominance as well. So blood groups present an example of multiple allelism as well as codominance. Now if you look at these three alleles and we try to make different combinations of them, अगर हम इन तीन allele से अलग अलग combinations बनाना चाहेंगी कि कितने type of genotypes हम बना सकते हैं, it will be something like this. We can get these 6 combinations if we try to take these three alleles into consideration. One is IA, another is IA, IO, then we can get another combination IB, IO, then we can take another combination IO, or we may get IA, IB. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो गौर से देखिएगा, मैंने 3 alleles बोर्ड पे लिखे हैं और उन 3 alleles से मैंने आपको बोला हम 6 combinations बना सकते हैं genotypes की, जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं. You can look at these 6 combinations. What are these 6 combinations? IA, IO, IB, IO, IO, and IB. Now these 2 or these 6 combinations, their students, will lead to the formation of 4 major blood groups जिनको हम human beings में देखते हैं. यानी इन 6 combinations की वजह से इंसानों के अंदर आपको 4 blood groups देखने को मिलेंगे. जैसे ये वाली combination और ये वाली combination will give rise to blood group A, and this combination and this combination will give rise to blood group B, and this combination will give rise to blood group O, and this combination will give rise to blood group AB. So a very important thing which you are going to remember from here is that these three alleles can be matched in 6 different combinations. They can be present in 6 different combinations which lead to formation of 4 blood groups. That means 6 combinations lead formation of 4 blood groups. One is A, another is B, another is O, and another is AB. So in ABO blood group system, in ABO blood group जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, ABO blood groups, आपको 4 किस्म के blood groups देखने को मिलते हैं, which is A, B, O and AB. इसकी डिटेल मैंने आपको अपने पिछले वाले लेक्चर में दी थी, जहां पे मैंने आपको बताया था when we say that a person has blood group O, by that we mean its RBCs has antigen A. And when we see a person has blood group
B, by that we mean its erythrocytes or RBCs are characterized by the presence of antigen B. And when we say that a person has blood group O, by that we mean its RBCs lack any type of antigen, neither A neither B are going to be present on the surface of its RBCs. Then when we say a person has blood group AB, by that we mean both the antigens, antigen A as well as antigen B, are present on the erythrocytes of such an individual. Now, dear students, this blood group system is accredited in the name of different scientists. साइंटिस्ट अलग अलग थे जिनने की ये 4 ब्लड ग्रुप्स दिए. इसमें से जो पहले 3 ब्लड ग्रुप्स हैं A, B and O, the credit for the discovery of these blood groups goes to a scientist known as Landsteiner, who discovered them in the year 1900. लैंडस्टीनर नाम का साइंटिस्ट था जिसने कि ईयर 1900 में इन 3 ब्लड ग्रुप्स को ढूंढा या डिस्कवर किया, दैट इज A, B एंड O. और जहां तक AB ब्लड ग्रुप की बात है, इसको इसके 2 स्टूडेंट्स ने ढूंढा. एक का नाम था डी कैस्टेला एंड अनदर वाज नोन एज स्टीनी. डी कैस्टेला and another was named as Stieni. And in the year 1902, यानी लैंडस्टीनर साइंटिस्ट जो था जिसने कि 3 ब्लड ग्रुप ढूंढे, one is A, B and another is O, इसी की लेबोरेटरी में इसी के 2 स्टूडेंट्स थे. एक का नाम डी कैस्टेला था और दूसरे का नाम स्टीनी था. इनने ईयर 1902 में चौथा ब्लड ग्रुप ढूंढा, which was AB. Their students, this discovery was a landmark in the history of humans. ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी जिससे ह्यूमन रेस को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ. इन द फील्ड ऑफ ट्रीटमेंट, इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, दिस वाज नथिंग लेस देन अ बून. और शायद यही वजह थी कि ईयर 1931 में इस डिस्कवरी के लिए लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज दिया गया. सो दिस डिस्कवरी वाज सो मच इम्पॉर्टेंट दैट इन द ईयर 1931 लैंडस्टीनर was given Nobel Prize for this remarkable discovery. So this is telling you very briefly about the ABO blood groups. Now you must understand, dear students, कि ये जो blood groups हैं across the human race किस तरीके से होते हैं. सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप जो ह्यूमंस के अंदर है, दैट इज ब्लड ग्रुप O एंड इट इज फाउंड इन राउंड अबाउट 47% ह्यूमंस. 47% ह्यूमंस के अंदर ब्लड ग्रुप जो है O मिलता है. उसके बाद नेक्स्ट प्लेस पे आता है ब्लड ग्रुप A, विच इज फाउंड इन ऑलमोस्ट 41% ह्यूमंस. यानी 41% ह्यूमंस जो आपके इर्द गिर्द हैं उनमें आपको ब्लड ग्रुप A मिलेगा. एंड 9% ह्यूमन बींग्स के अंदर आपको ब्लड ग्रुप कौन सा मिलेगा? B मिलेगा. और AB जो है आपको 3% ह्यूमंस के अंदर मिलेगा. सो हेयर आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया कि कौन सा ब्लड ग्रुप कैसे, किस रेशियो, किस एवरेज पे मिलता है ह्यूमन बींग्स के अंदर. सो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप दैट यू गोइंग टू सी अक्रॉस ह्यूमन बींग्स, दैट इज इन 47% ह्यूमन बींग्स, दैट इज द ब्लड ग्रुप O. Then it is followed by blood group A, which is seen in 41% humans. Then it is followed by blood group B, which is seen in 9% humans. And then it is followed by blood group AB, which is seen in 3% of the humans. So that is one another information which you must keep in mind with regards to the blood groups. Now let us try to see कि ऐसे इंसानों के खून में जिनको हम कहते हैं कि इनका ब्लड ग्रुप A है, B है, O है, क्या चीजें होंगी. Now हमने 4 ही ब्लड ग्रुप्स की बात की. We said that 4 types of blood groups are present in the ABO blood group system. वो क्या है? हम एक टेबल बनाने की कोशिश करेंगे और इस टेबल के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स जो हैं इनकी आरबीसीज में क्या होगा और इनके प्लाज्मा में ब्लड के क्या होगा. तो हम इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे. यहां पे हम लिखेंगे ब्लड ग्रुप, यहां पे हम लिखेंगे कौन सा एंटीजन होगा इनकी आरबीसीज की सरफेस पे, और यहां पे हम लिखेंगे कैसी एंटीबॉडी होगी इनके प्लाज्मा में. नाउ
Dear students, I've already told you that there are 4 major blood groups which come under ABO blood group types. One is the blood group A, another is blood group B, another is blood group O and another is blood group AB. तो हम इस टेबल में क्या करने की कोशिश करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस इंसान का जो भी ब्लड ग्रुप होता है उसकी आरबीसी की सरफेस पे किस तरीके का एंटीजन होता है और उसके ब्लड के प्लाज्मा में किस तरीके का एंटीबॉडी या किस तरीके की एंटीबॉडी होती है। सबसे पहले हम इसमें ब्लड ग्रुप ए को लेंगे। किसको लेंगे? ब्लड ग्रुप ए को। नाउ ब्लड ग्रुप ए जिन भी इंसानों के अंदर होगा उनकी आरबीसीज पे जो एंटीजन होगा दैट विल बी एंटीजन ए, दैट विल बी एंटीजन ए। नाउ एंटीबॉडीज इनमें किसके लिए होगी? दे विल हैव एंटी बी, यानी एंटीबॉडीज इनके प्लाज्मा में बी के लिए होंगी, ब्लड ग्रुप बी के लिए होंगी। यानी ऐसा इंसान जिसमें ब्लड ग्रुप ए है, if that person is transfused with blood group B, these anti-B will act on those RBCs which have a B antigen on their surface, cause agglutination of those RBCs. So that is one thing which you must remember. And here you must also write what is the possibility of genotype, कौन सा जीनोटाइप ये वाला एंटीजन बनाएगा। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, या तो जीनोटाइप ये होगा और या तो जीनोटाइप ये होगा। ये दोनों जीनोटाइप्स अगर होंगे, दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन ए इन केस ऑफ persons having blood group A, and in their plasma you are going to see antibodies for blood group B. Then coming to the blood group B, इनकी RBCs के ऊपर कौन सा एंटीजन मिलेगा जिसकी वजह से हम कहते हैं इन इंसानों के अंदर ब्लड ग्रुप बी है? दैट एंटीजन इज एंटीजन बी। सो द पर्सन with blood group B is going to have antigen B on their surface, on the surface of the RBCs, and the plasma will have which antibody? It will have antibody for A। देखिए एंटीबॉडी को हम स्मॉल लेटर से डेजिग्नेट कर रहे हैं कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। अगर मैं कैपिटल ए लिखूंगी, यू मस्ट अंडरस्टैंड बाय दिस आई मीन एन एंटीजन, एंड व्हेन आई राइट स्मॉल यू मस्ट अंडरस्टैंड आई एम रेफरिंग टू एन एंटीबॉडी। नाउ what can be the genotypes? These are the genotypes IB, IB and IBIO. So these two possible genotypes can be present in a person with blood group B. These lead to the formation of an antigen on the surface of the RBCs which we call as antigen B, and the plasma of such people will have antibody for A blood group. Then coming to the blood group O. What is the possible genotype? IO. Now tell me what will be the antigen. I told you no antigen. There will be no antigen. There will be no antigen on the surface of this RBC. ऐसे इंसान जिनमें ब्लड ग्रुप O होगा उनकी RBCs के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगा। नाउ एंटीबॉडी किसके लिए होगी? एंटीबॉडी दोनों के लिए होगी, ए के लिए भी होगी और बी के लिए भी होगी। सो एंटीबॉडीज विल बी प्रेजेंट फॉर बोथ द ब्लड ग्रुप्स ए as well as B. So that was for the blood group O. Now let's discuss about the blood group AB. You know the genotype has to be IA, IB, which presents an example of codominance. Very nice. And what will be the two antigens present on the surface of these RBCs? One will be antigen A and another will be antigen B. Now think and try to tell me, क्या इनमें किसी के लिए एंटीबॉडी होगी? जी नहीं, एंटीबॉडी किसी के लिए भी नहीं होगी। So no antibody will be present in their plasma. सो हैव अ लुक एट दिस टेबल। मैंने आपको क्यों ये टेबल के जरिए करवाया? ताकि जब आप याद करेंगे, आप ऐसा ही टेबल बना के याद करेंगे, आपको क्विकली याद भी हो जाएगा एंड यू गोइंग टू रिमेंबर बाय दिस मेथड। सो हियर इन दिस टेबल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल जीनोटाइप्स फॉर द 4 ब्लड ग्रुप्स एंड व्हाट आर द एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द surface of these RBCs and what are the antibodies present in their plasma. Let's discuss them once more. A person with A blood group
has a genotype either IA or IAIO, and a person with such a blood group will have antigen A on their RBCs and it will have antibody B in its plasma. Then a person with blood group B will have a genotype of type IB or IBIO, and it will have an antigen B on the surface of its RBCs, and then it will have antibodies of A type. Then a person with blood group O will have a genotype IOIO. There will be no antigen present on the surface of such RBCs, and antibodies will be for both A as well as B. Since I told you it has a recessive nature as compared to A and B, it has a recessive nature. इसकी recessiveness की वजह से कभी हम इसको small I से भी denote करते हैं. So you must be finding books around you where you can see this written as small I, so you don't have to get confused. Small I, it is denoted by this small I just to show its recessive nature. And in certain books you may find the genotypes written like this, LALO. Instead of I you find L. Now why L? In the honor of Landsteiner, in the honor of the scientist that discovered this blood group, sometimes alleles को इस तरीके से भी represent किया जाता है. Now you'll find different books around the market, in the library or even through the net, जहाँ से आप search कर रहे हैं, या तो इस तरीके से लिखा होगा या तो I के फॉर्म से लिखा होगा. Now you must not get confused. अगर आपको L के तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, so L is nothing but it is in the honor of the Landsteiner, the scientist that discovered these blood groups. So this was, dear students, what is present in the plasma and what is present on the surface of the RBCs. Now you have understood about these blood groups. Now how do we check? हम किस तरीके से पता करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है. इफ अ डॉक्टर हैज टोल्ड यू कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, उसने कोई टेस्ट करके बोला होगा ये, तो हम किस तरीके से ये पता करते हैं कि किस इंसान का ब्लड ग्रुप कौन सा है. Now let us try to discuss that very briefly. Now blood groups जो हैं हम दो एंटीसिरा की मदद से करते हैं. One is known as antisera A, which has antibodies for A, and another is antisera B. So it's a मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज. एक को हम एंटीसिरा ए कहते हैं और दूसरे को हम एंटीसिरा बी कहते हैं. सो वन इज एंटीसिरा ए जिसको एंटाई ए कहते हैं, अनदर इज एंटीसिरा बी जिसको हम एंटाई बी कहते हैं. सो वी हैव टू एंटीसिरास अवेलेबल विद अस. वन इज नोन एज एंटीसिरा ए एंड अनदर इज नोन एज एंटीसिरा बी. और इन्हीं दो एंटीसिरास की मदद से हम पता करते हैं कि इंसान का ब्लड ग्रुप कौन सा है. अगर आपने किसी इंसान का ब्लड ट्रीट किया विद एंटीसिरा ए, सो आई विल ड्रॉ अ टेबल हेयर अगेन ताकि आपको आसानी हो इसको याद रखने में. अगर आपने किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ट्रीट किया विद एंटीसिरा ए और उसमें एग्लूटिनेशन हो गई यानी क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज हो गई, तो आपको समझ लेना है ऐसे इंसान का ब्लड ग्रुप ए है. So a person with blood group A, if it is treated with antisera A, अगर एंटाई A के साथ आपने इसको ट्रीट किया है और यहाँ पे एग्लूटिनेशन हो गई, यहाँ पे एग्लूटिनेशन हो गई, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे इंसान का ब्लड ग्रुप A है, ऐसे इंसान का ब्लड ग्रुप A है. और अगर आप A वाले इंसान का एंटाई बी के साथ जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा और उसका ब्लड आप ट्रीट करोगे एंटीसिरा बी के साथ, देयर विल बी नो एग्लूटिनेशन. तो अगर आप तो अगर आप एंटीसिरा बी से चेक कर रहे हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है और आपने इंसान के ब्लड ग्रुप को ट्रीट किया एंटाई बी एंटीसिरा बी से और आरबीसीज की एग्लूटिनेशन या क्लंपिंग नहीं हुई, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज ब्लड ग्रुप ए. तो दो तरीकों से आप पता कर सकते हैं. अगर आपने ब्लड ग्रुप को एंटीसिरा ए के साथ ट्रीट किया और वहां पे एग्लूटिनेशन हो गई, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ब्लड ग्रुप ए है. लेकिन अगर आप एंटीसिरा बी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हो रही है, तो आपको समझना है ये ब्लड ग्रुप बी है. नाउ हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप बी की.
नाउ अगर आप ऐसा इंसान जिसका ब्लड ग्रुप बी है और उसको एंटीसिरा ए के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो उसमें कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं होगी, नो एग्लूटिनेशन। तो अगर आपने एंटीसिरा ए लिया और एक इंसान का ब्लड ग्रुप उसके साथ एंटीसिरा बी लिया, और चलिए एंटीसिरा बी से या एंटीसिरा ए से कर लेते हैं। अगर आपने एक इंसान का ब्लड लिया और उसको ट्रीट किया एंटीसिरा ए के साथ, वहां पे कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हुई, यू हैव टू अंडरस्टैंड इंसान का ब्लड ग्रुप बी है। और ऐसा इंसान जिसका ब्लड ग्रुप बी है, या आपने ब्लड लिया एंटी बी के साथ, एंटीसिरा बी के साथ ट्रीट किया और वहां पे एग्लूटिनेशन हो गई, एग्लूटिनेशन इज प्रेजेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे इंसान का ब्लड ग्रुप बी है। तो अगेन देखिए, बी ब्लड ग्रुप हमने चेक किया एंटीसिरा ए के जरिए, एंटीसिरा बी के जरिए। अगर आप एंटीसिरा ए के साथ इंसान का ब्लड को ट्रीट कर रहे हैं और कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हो रही है, you have to understand that the blood group is B. Now, if you are treating the blood of the person with antisera B and there is agglutination, जबरदस्त एग्लूटिनेशन हो रही है, एग्लूटिनेशन दिखा रहा है आपका स्लाइड, then you have to understand कि ऐसे इंसान का ब्लड ग्रुप B है। नाउ अगर इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी है, सोच के बताइए, यानी इसमें एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा। अगर इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी है और आपने एंटीसिरा ए के साथ ट्रीट किया तो क्या होगा? जस्ट टेक सम टाइम एंड थिंक, एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और यहां से एंटीबॉडी ए के लिए है, व्हाट विल हैपन? एग्लूटिनेशन विल हैपन। और जब आप एंटी बी के साथ भी करते हैं तब भी एग्लूटिनेशन होगी। तो अगर आपको कोई ऐसा केस मिल रहा है ब्लड सैंपल का, जब आपने एंटीसिरा ए के साथ ट्रीट किया तब भी एग्लूटिनेशन हो गई और जब आपने एंटीसिरा बी के साथ ट्रीट किया तब भी एग्लूटिनेशन हो गई, तो यू हैव टू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इस इंसान का जो है ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप इसका ए बी है। नाउ दिस इज अबाउट ए बी। इसी तरीके से अगर अब इंसान का ब्लड ग्रुप ओ है, और आपने एंटीसिरा ए के साथ ट्रीट किया, ओ के बारे में आपको पता है, आरबीसी की सरफेस पे ना एंटीजन ए होगा ना एंटीजन बी होगा, लिहाजा जब आप इसको एंटीसिरा ए में डालेंगे देयर विल बी नो एग्लूटिनेशन। इसी तरीके से जब एंटीसिरा बी में डालेंगे देयर विल बी नो एग्लूटिनेशन। तो अगर आपके पास ऐसा ब्लड सैंपल है जिसको आप एंटीसिरा ए के साथ ट्रीट करते हैं, कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हो रही है, फिर आप एंटीसिरा बी के साथ ट्रीट करते हैं तब भी कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हो रही है, यू हैव टू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ऐसे इंसान का ब्लड ग्रुप ओ है। सो देयर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप्स। हम टेस्ट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। सो फॉर टेस्टिंग ऑफ ब्लड ग्रुप्स वी यूज 2 एंटीसिराज। एमसीक्यू में जो पूछा जा सकता है, 1 नंबर के सवाल में जो पूछा जा सकता है, व्हाट आर द 2 एंटीसिराज? एंटीसिरा ए एंड एंटीसिरा बी। नाउ आपने बड़े अच्छे से समझ लिया कि किसमें कौन सा एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडीज है। इसको देख के ही आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा होगा जो हर किसी को ब्लड दे सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो हम हर किसी इंसान के अंदर ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं और ऐसी इंसान की बॉडी के अंदर कोई भी किस्म की एग्लूटिनेशन नहीं होगी, यानी ऐसा ब्लड ग्रुप जिसको हम यूनिवर्सल डोनर कहेंगे, जो कि हर किसी दूसरे इंसान को ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप कुछ भी और हो, दैट ब्लड ग्रुप इज ब्लड ग्रुप ओ। जो ब्लड ग्रुप ओ है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। द ब्लड ग्रुप ओ इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ऐसी ब्लड ग्रुप वाले इंसान की आरबीसीज के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, लिहाजा इट इज सेफ टू बी ट्रांसफ्यूज इनसाइड द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ एनी ब्लड ग्रुप। तो अगर एक्सीडेंट के केस में इतना टाइम नहीं होता है कि हम ब्लड ग्रुप को चेक करें, तो हमें इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है और हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप का इंसान होता है, तो हम इसको किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सोच के कि ऐसे ब्लड ग्रुप के ट्रांसफ्यूजन पे कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं होने वाला है, बिकॉज इट इज एन यूनिवर्सल डोनर। सिमिलरली, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी खून ले सकता है, जिसको कि हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं? द यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज ए बी ब्लड ग्रुप।
AB ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप से ट्रांसफ्यूजन ले सकता है. सो ब्लड ग्रुप O is the universal donor and blood group AB is the universal recipient. Dear students, this was about blood groups. There are many more things to be discussed in this unit, but the time is not allowing me. I leave you with this promise that we will meet in next lecture and we will take up RH blood group, which is very important. Till then, stay home, stay safe.